Good morning, students. So, today we will continue from where we have left in the earlier class. So, in the last class, we have discussed about molecules and what is molecule. We've discussed molecules and also I have discussed about the atomicity. I was discussing that number of atoms present in a molecule is called as its atomicity. Okay, so how many atoms are combining to form a molecule, that is called as atomicity. So now today we will see the next topic, that is what are monoatomic molecules. So let us see what is monoatomic molecules. So whenever a molecule contains one atom, a single atom will be there, then it will be called as a monoatomic molecules. Okay, so here it is saying that if a single atom is regarded as a molecule, then they are called as monoatomic molecules. Examples like sodium, magnesium, then helium, neon, argon. Okay, all these are monoatomic molecules. So most of the metals, all metals are monoatomic and all noble gases are also monoatomic. Any metals we can write. Next we will see what are diatomic molecules. So basically what are monoatomic, students? So their atomicity is 1. We have to remember that. Their atomicity is 1. And in diatomic molecules, atomicity will be 2. That means 2 atoms combine to form a molecule. Okay. So diatomic molecules which contain 2 atoms. The molecule which contain 2 atoms of same time are called as, example, hydrogen, oxygen and nitrogen. Next is polyatomic. Now polyatomic means atomicity will be more than 2. Okay. So here the atomicity is more than 2. So which contain more than 3 atoms of same type are called as polyatomic. So here actually it will be not more, it will be more than 2, it will be actually more than 3, more than 2. Okay. Next we will see some atomic structure. So here we can see that hydrogen is a diatomic molecule. So what happens here? Two hydrogen atoms combine to form two hydrogen atom combines to form a hydrogen molecule. Similarly, chlorine is also diatomic. That means two chlorine atoms combine to form a chlorine molecule. Okay. Similarly, polyatomic molecules like ozone molecule. So ozone, what happens? Three oxygen atom combine to form one ozone molecule. Okay. Now let us see how many types of atoms of different elements forming a molecule. So till now we have considered the examples where same type of atoms combine, but now we will see some molecules where different kind of atoms can combine. For example, if we take the example of water, what happens? You see one hydrogen atom, another hydrogen atom. So two hydrogen atoms combine with one oxygen atom and it is called as a, then it forms a water molecule. Clear, students? Let us go to the next part. So what is a compound? Let us see the definition of compound. Okay, so let us see the definition of compound here. So what is a compound? A compound is a pure substance made up of two or more different elements combined chemically in a fixed proportion. Yes, students, you have to remember that here two or more different elements will be there and they will be combined in a fixed proportion. Okay, let us see the example here. Suppose if you see the example of hydrogen when combined with oxygen, then we get water. Now here if you see hydrogen and oxygen are combined in a fixed proportion. Now what is that fixed proportion? You see here
that 2 hydrogen atoms are combining. Yes, how many hydrogen atoms? 2, but oxygen only 1. That means we can say that hydrogen is to oxygen is how much? It is actually 2:1. So ratio of hydrogen is to oxygen is 2:1. So this we have to remember. Okay, next, then only we will get water. But if 2 hydrogen and 2 oxygen will combine, suppose their ratio is 2:2, then that will become something else. Okay, that will be not be water. Let us go to the next part. Let us see the characteristics of compounds. So the first characteristic of a compound is, in a compound the components are in definite proportion. Yes, the components will be present in a definite proportion. Now what is the definite proportion? So if we take the example of water, suppose if we take the example of water, in water, what are the components? Components are hydrogen and oxygen. So their proportion is definite, that is fixed. If in any water, if you see the ratio, that will be always 2:1. So 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. Next is that compounds is always homogeneous. Yes, they are always in homogeneous. That means their composition will be identical in all the part. Suppose if I take a glass of water, suppose this is the glass of water, and if I take water from this corner, or if I take water from this corner, everywhere the composition water will be same, that is 2:1. That means 2 hydrogen will be there and 1 oxygen will be there. Next is particles in a compound are of one kind. Yes, in a compound the particles will be of one kind. Particles means here we are talking about molecules. Now from this glass of water, if we see, if we take a molecule that is H2 only, so all H2 will be having the same characteristics. Next, particles in a compounds have a definite set of properties. Yes, they have a definite set of properties, nothing to do with the components. Take the example of hydrogen. Now hydrogen is a very good, it is a combustible gas. Hydrogen burns easily and oxygen supports burning. Now you see, one can burn easily and one can support burning very easily. तो ये जलने वाला चीज है और ये जलाने वाला चीज है. तो जलने वाला प्लस जलाने वाला मिलकर क्या बनाता है बच्चों? वाटर बनाता है. मतलब वाटर तो एक बम होना चाहिए था, धमाके के साथ फूटना चाहिए था, लेकिन वाटर क्या करता है? आग बुझाने का काम करता है. मतलब जलने वाला प्लस जलाने वाला मिलकर बनाता है आग बुझाने वाला. So its property is totally different from the property of the constituents or components. तो components से property, जो product बनता है उसका property पूरा ही अलग है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया they have definite set of properties. Next, they do not retain their original properties. मतलब अपना original properties को रखते नहीं है. Retain means not losing. So they do not retain, that means they lose their original properties. फॉर एग्जाम्पल इधर मैंने एग्जाम्पल दिखाया कि हाइड्रोजन जो इजीली जल जाता है उसका ओरिजिनल प्रॉपर्टी था, यहाँ पर आकर के वो भूल गया. ऑक्सीजन का ओरिजिनल प्रॉपर्टी क्या था? सपोर्ट्स बर्निंग करना, वो भी भूल गया और भूल के क्या बना दिया? वाटर. सो दे लूज देयर प्रॉपर्टीज. ओके, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट कंपोनेंट्स इन ए कंपाउंड कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मींस ओनली. मतलब एक बार ये कंपाउंड बन जाए तो इनको हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, और अलग करना भी है तो केमिकल मीन से अलग कर सकते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा. तो अगर हम लोग को वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? ओके, हियर वन मोर एग्जांपल इज गिवन हियर. व्हाट इज द एग्जांपल? एग्जांपल इज सेइंग अबाउट आयरन सल्फाइड. तो बच्चों आयरन डस्ट और सल्फर डस्ट को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो उनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं एक मैग्नेट से. सिर्फ मिक्स करेंगे, उसको रिएक्ट नहीं करवाएंगे. तो एक मैग्नेट लेंगे तो सारा आयरन पार्टिकल्स वहाँ मैग्नेट में जा करके चिपक जाएगा, राइट? तो यहाँ पर मैग्नेट में देखो सारा आयरन पार्टिकल्स चिपक गया. तो बच्चों जब हम मिक्स करते हो तो उनको आसानी से अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको हीट कर दें, हीट करने से क्या होता है? आयरन और सल्फर कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होकर के बन जाता है आयरन सल्फाइड. क्या बन जाता है? आयरन सल्फाइड. सॉरी बच्चों, यहाँ पर आयरन सल्फाइड है. तो आयरन सल्फाइड में जब हमने मैग्नेट लाया तो कुछ भी सेपरेट नहीं हुआ, आयरन अलग नहीं हुए, लेकिन जब आयरन और सल्फर का मिक्सचर लिया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
आयरन डस्ट जो है आकर के अट्रैक्ट हो गए मैग्नेट से। तो मिक्सचर में हम लोग अलग कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड में वी कैन नॉट सेपरेट इट। नाउ वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट एंड कंपाउंड। ओके, वी विल कंपेयर देयर प्रॉपर्टीज। So what is the first property? It contain one kind of atoms only. तो एलिमेंट जो है सिर्फ एक ही तरह का उसके अंदर एटम होता है, लाइक कार्बन एंड ऑक्सीजन। और कंपाउंड में क्या होता है बच्चों? इट कंटेन टू और मोर काइंड ऑफ एटम्स। तो उसके अंदर दो तरह का एटम, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जांपल ले लेंगे तो उसमें क्या क्या है? कार्बन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट, दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, एलिमेंट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल और केमिकल मीन। मतलब जो फिजिकल कर लो केमिकल कर लो, एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। बट कंपाउंड कैन बी ब्रोकन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। नेक्स्ट, एलिमेंट्स हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। तो एलिमेंट का खुद का प्रॉपर्टीज होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जो कि कंबस्टिबल है, मतलब आसानी से चल जाता है, कोयला आराम से चल जाता है, कोयला के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबस्शन। लेकिन यही कार्बन और ऑक्सीजन अगर जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं कंपाउंड्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स डिफर फ्रॉम दोज ऑफ देयर एलिमेंट्स। तो एलिमेंट से पूरा ही अलग होता है कंपाउंड का प्रॉपर्टी। तो कार्बन और ऑक्सीजन क्या है? एक जलने वाला दूसरा जलाने वाला, मिलके बना चाहते हैं बॉम्ब, लेकिन बनता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आग को बुझाता है। इट इज ए नॉन सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ये आग को बुझाने का काम करता है। एक तो ना ये जलता है और ना ये जलाने में मदद करता है। तो पूरा ही अलग प्रॉपर्टी हम लोग को मिलता है। तो नेक्स्ट वी विल सी व्हाट इज अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ए मिक्सचर? सो मिक्सचर, a mixture is made up of two or more substances, elements और compounds और both। मतलब बच्चों मिक्सचर में क्या होता है कि या तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन कर सकते हैं, या दो से दो ज्यादा कंपाउंड्स, या दो से ज्यादा दोनों। मतलब एलिमेंट और कंपाउंड अगर मिक्स हो गए मैकेनिकली, ध्यान दो यहाँ पर मैकेनिकली मिक्स हो रहा, मतलब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, सिर्फ मिलाया जाएगा ऐसे ही। ओके, इन एनी प्रोपोर्शन, मतलब कोई भी प्रोपोर्शन में मिलाया जाएगा, कोई फिक्स रेशियो नहीं। जैसे वाटर का रेशियो था 2:1, मिक्सचर बनाने के कोई भी रेशियो नहीं होता। नाउ ए मिक्सचर रिटेन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो मिक्सचर में क्या होता है बच्चों? जो उसके कंपोनेंट्स होते हैं या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर्टी रिटेन रहता है, मतलब प्रॉपर्टी चेंज नहीं होता है। दे डू नॉट लूज देयर प्रॉपर्टी। ओके, जैसे कि बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, कॉपर और जिंक। तो कॉपर एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, दोनों को मिलाने से क्या बनता है? ब्रास। तो ब्रास के अंदर जिंक भी अपना प्रॉपर्टी को रखता है और कॉपर भी अपना प्रॉपर्टी को रखता है। दोनों अपने प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं, मतलब भूलते नहीं है। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग अगर पानी में नमक मिला लेंगे, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, अगर सोडियम क्लोराइड पानी में मिला देंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट सॉल्यूशन बनेगा। उसमें क्या सॉल्ट चीनी बन जाता है? सॉल्ट का टेस्ट चेंज हो जाता है पानी में मिलाने से? चेंज नहीं होता है, मतलब अपना प्रॉपर्टी लोग फिक्स रखते हैं। दूसरा चीज क्या है कि उसमें हम कितना चाहे सॉल्ट मिला सकते हैं, मतलब उसका कोई फिक्स्ड रेशियो भी नहीं है कि 100 ml पानी में सिर्फ 10 ग्राम नमक मिलाना है, ऐसा कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, जैसे कि सल्फर, कार्बन और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग कहते हैं गन पाउडर। गन पाउडर मतलब बारूद, जो क्रैकर्स में यूज होता है, पटाखे में यूज होता है, तो उसको हम कहते हैं गन पाउडर। वो भी एक मिक्सचर ही होता है। नेक्स्ट विल सी व्हाट आर द टाइप ऑफ मिक्सचर्स। तो कितने टाइप के मिक्सचर्स होते हैं बच्चों? तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो अब डिफरेंस देखते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। तो इसमें क्या होता है? पूरा अच्छे तरह से मिक्स होता है, यूनिफॉर्म मतलब हर तरफ सेम होता है। ठीक है, जैसे कि हम पानी में नमक मिला देते हैं तो चाहे ऊपर से पिए या नीचे का पानी पिए, दोनों तरफ हमको नमक सेम मिलेगा, मतलब वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में क्या होगा कि कंस्टिट्यूएंट्स नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड, इसमें अच्छे से मिक्स नहीं होते। जिस तरीके से सैंड और वाटर को अगर मिक्स करेंगे तो क्या होगा? सैंड नीचे रह जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर सैंड कम नीचे सैंड ज्यादा, तो कंस्टिट्यूएंट्स नॉट यूनिफॉर्म होंगे। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। तो हर तरफ कंपोजिशन सेम होता है, बट यहाँ पर प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन वेरी थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब वेरी करता है, मतलब चेंज होता है। ओके, नेक्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल जैसे दिया गया, टू सॉलिड्स के एग्जांपल बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? ब्रास, जिसमें कॉपर और जिंक मिलाया गया। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल टू सॉलिड जैसे आयरन और सल्फर को मिक्स किया गया, जो कि हेट्रोजीनियस होगा।
एग्जाम्पल सॉलिड और लिक्विड का होगा, सॉल्ट एंड वाटर को मिला देंगे तो होमोजीनियस हो जाएगा। और हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल ले लेंगे तो सैंड एंड वाटर। टू लिक्विड का होमोजीनियस मिक्सचर अगर बोलेंगे तो अल्कोहल एंड वाटर। तो अल्कोहल और वाटर वो उनको हम मिलाएंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, तो वो होमोजीनियस बन जाता है। बट टू लिक्विड्स के एग्जाम्पल लेंगे ऑयल एंड वाटर। हम लोग को अच्छे से पता है कि कोकोनट ऑयल को जब पानी में डालते हैं तो क्या मिक्स होता है? नहीं होता है। कोकोनट ऑयल फ्लोट्स ऑन द वाटर, सो दे डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। और टू गैसेस, दो गैस के एग्जाम्पल है एयर। एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। ओके ओके, so this is the example of two gases which are heterogeneous mixture. So students, actually gases cannot mix heterogeneously because whenever they mix homogeneously only, because gases can diffuse very fast. So it mix always in homogeneously. Okay, okay, so now we will see what are the differences between compounds and mixtures. So let us see the difference between compounds and mixtures. So what happens in compounds and mixtures, students? In a compound, the composition of a compound present in a fixed proportion. Yes, the proportion is always fixed. But in mixture, the composition of compounds present in a varying proportion. तो बच्चों मिक्सचर से हम लोग को याद आता है, हम लोग चाय के साथ मिक्सचर खाते हैं ना, उस मिक्सचर में भी बहुत सारी चीज मिलाया हुआ रहता है, उसका कोई डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है क्या? कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है। तो उसी तरीके से बच्चों कोई भी जो मिक्सचर होता है उसमें उसका जो कंपोनेंट्स का जो प्रोपोर्शन है, जो रेशियो है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। नेक्स्ट, कंपाउंड्स आर ऑलवेज होमोजेनियस, वो हमेशा होमोजेनियस होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म होते हैं उनका कॉम्पोजिशन। बट मिक्सचर्स आर होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज। कंपाउंड्स क्या होते हैं ना, कंपोनेंट्स डू नॉट रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टी, उनका ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन नहीं करते। बट इन केस ऑफ मिक्सचर्स, कंपोनेंट्स रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज, अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टीज को रिटेन करते हैं, मतलब भूलते नहीं अपना प्रॉपर्टीज। किसमें? मिक्सचर में। बच्चों इसका सबसे अच्छा एग्जांपल झालमुड़ी का ले लो। अभी झालमुड़ी में बहुत सारा चीज होता है, जैसे आलू हो गया, मूढ़ी हो गया, मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, इमली हो गया। तो कोई भी सबको अच्छे से मिला दिया जाता है, लेकिन जो चीज तुम्हारे दांत के नीचे आता है, मिर्चा चबा लिया तो तीखा लगता है, इमली चबा लिया तो खट्टा लगता है, आलू चबा लिया तो टेस्टी लगता है। तो जो भी चीज चबाओगे तुमको उसका टेस्ट मिलेगा, मतलब कोई अपना टेस्ट को रिटेन नहीं, मतलब भूलते नहीं है, वो अपना टेस्ट को रिटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स। तो बच्चों कंपाउंड में हमको अगर कंपोनेंट को अलग करना है तो उनको केमिकल मीन से ही अलग कर सकते हैं। बट इन मिक्सचर, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। अब हम लोग मिक्सचर में हम लोग फिजिकल मीन से अलग कर सकते हैं। जैसे कि हमने पानी में नमक मिला लिया, अब हमको नमक को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसको बॉइलिंग करेंगे तो वो निकल जाएगा अलग से। अंडरस्टूड? तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, ओके, बाय बाय।